Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sita Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. जय दंडवत प्रणाम समस्त चरण भक्तबिंद चरण दंडवत दंडवत जय राधे दंडवत दंडवत जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम। गीता कथामृत सत्र उपस्थित समस्त गुरुजन मंडली विद्वान मंडली वैष्णव मंडली श्री चरण कमल प्रणामांजलि विज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक विगत गीता कथामृतर सारांश समुपस्थापन करने आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद को अनुरोध करुच्ची। आयुष्मान श्रीनिवास। जय जय श्री राधे। तस्याद्यते ददृशिमां घ्रिमघौघमर्ष तीर्थास्पदं हृदि कृतं सुविपक्वयोगैः उत्सिक्त भक्त्युपहता सयजीवकोशा आपुर्भवद्यतिमथो नुगृहाण भक्तान्। श्री सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्णचंद्र चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम तथा वैष्णव कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय श्री श्री चक्रवर्ती पादंक चरण जुगल साष्टांग प्रणाम करुअछि। उपस्थित समस्त सुधी श्रोतृवृंद को विनम्र प्रणाम निवेदन पूर्वक परम पूज्य श्रीमन आचार्य पादंक चरण नलिन
ମୋର ଆଭମ ପ୍रणिपात କରୁଛି। ବିଗତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ଚିନ୍ତନ ସତ୍ରରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର କିଞ୍ଚିତ୍ ସାରାଂଶ କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛି। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ହେବେ, ସେହି ସକଳ ଭୂତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିହୀନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମତେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୋକ, ମହାରୁଦ୍ର ଆଦି ମହାସର୍ବଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଯୋଗମାୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜୀବଗଣ କେଉଁ ସମୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସମ୍ମୋହଂ सर्गे यान्ति परन्तप। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, संसाରରେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦ୍ୱେଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ପଥିକ ସାଧକ ପାଇଁ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅବିବେକ ହିଁ ବାଧକ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଗଣ ପ୍ରାଚୀନ କର୍ମଜନ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦ୍ୱେଷ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ଓ ଦ୍ୱେଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନ ଅପମାନ, ଶୀତୋଷ୍ଣ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ପୁରୁଷ ଅଟେ, ଅତଃ ମୁଁ ସୁଖୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଅପମାନିତ ପୁରୁଷ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ରମଣୀ ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଟେ, ଏହି ପୁରୁଷ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅବିଦ୍ୟା ଜନିତ ମୋହ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ର ଆଦିରେ ଆସକ୍ତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁରୁଷ ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଃ ସଂସାରରେ ଅତି ଆସକ୍ତ ଜନର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ମୋର ଦିବ୍ୟ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯାହାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାସକ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପୁରୁଷର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ୟଦୃଚ୍ଛୟା ମତ୍କଥାଦୌ ଜାତ ଶ୍ରଦ୍ଧସ୍ତୁ ಯಃ ପୁମାନ୍ ନ ନିର୍ବିଣ୍ଣୋ ନାତିଶକ୍ତୋ ଭକ୍ତି ଯୋଗସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିଦଃ। ତେବେ ଜିଜ୍ଞାସା ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଷାଂ ତ୍ୱନ୍ତଗତଂ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାଂ ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। ଅର୍ଥାତ୍ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଜନିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟୀ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ, ତମୋ ଗୁଣର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତମୋ ଗୁଣର ହ୍ରାସ ହୁଅନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟଭୂତ ମୋହର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମୋହ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦୃଚ୍ଛା କ୍ରମରେ ଅତ୍ୟାସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଭଜନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସଂଜାତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। जय जय श्री राधे। श्रीनिवास प्रसाद तुम गीता चिंतन चंचलिका तरफ आम अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुचु। आज विशेष सूचना समस्त को दंडवत प्रणाम ज्ञापन पूर्वक अवगत करूची जे आचार्य पादंकर निर्देश अनुसार आज सत्रटी विशेष सत्र रूपे परिगणित हेबो। एई सत्र रे आवृत्ति एवं प्रश्न उत्तर कार्यक्रम एवं
चर्चा माध्यम रे सत्र टी आज आम महिमा मंडित करवा। तेणु आमर श्रीधर महाराज अच्छा मु श्रीधर महाराज को निवेदन करी जे सी ए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एवं आवृत्ति कार्यक्रम पर जदि आम मानू ये सप्तम अध्यायर वैशिष्ट्य बा सप्तम अध्याय सप्तम अध्यायर कौन गोटे श्लोक बा तांकर मया सप्त मनहा पार्थ जोगम जुंजन मदाश्रय ये भक्ति जोगर जो पराकाष्ठा सप्तम अध्याय प्रदर्शन कराई ता विषय यदि टिके आलोकपात करेंगे तार आम धन्याति धन्य हेबु। तेणु मु प्रथमे आवृत्ति कार्यक्रम करी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तापर श्रीधर महाराज एवं अत्यंत आउ सब आम गुणीजन विदग्धजन उपस्थित अच्छा से किसी कहवाक चाहिए ताहले मु अनुरोध करी। तेणु वर्तमान आम्भे चर्चा सत्र को आगे नेवाई मु अवनीन्द्र जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो पहले से 20 श्लोक तक यदि आवृत्ति करें तो अच्छा ही होगा। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करेंगे। पहले से 20 श्लोक तक। जय सिया राम, जय सिया राम। 1 से 20, 15 से 20। 1 से 20। ठीक ठीक। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। श्री परमात्मने नमः। सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः तं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय।
अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मायि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् वेद्धि न त्वहं तेषु ते मायि प्रभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वेभ्यो नमो नमः हरि ओम जी प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको हम इस चंद्रिका समूह की तरफ से अशेष धन्यवाद ज्ञापन करते हैं प्रणमांजलि पूर्वक। आपको आपका मधुराति मधुर स्वर हम सभी को अभिभूत किया है, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। वर्तमान मु आमर युवशत्रु मानकु किछि प्रश्न पचारिबी जहाँ पूर्व आलोचना करा एवं व्याख्यान व्याख्यात तो आचार्य पादक द्वारा तार पुनरावृत्ति पुनस्मरण करने मु प्रथम प्रश्न वर्तमान पचारुची ए 20 श्लोक भितर से जो 20 श्लोक अवरींद्र जी आवृत्ति करले से 20 श्लोक मध्य ए प्रश्न उत्तर सब सन्निहित रही। प्रथम प्रश्न हेउची मु जो प्रश्न पचारिबी ताहाकू गुजतु से श्लोक उच्चारण करिवे एवं तार अर्थ को कहिबे। केउ माने दूरत्यय माया को अतिक्रम करि पारंती, केउ माने दूरत्यय माया को अतिक्रम करि पारंती। एठी को श्लोक रे यार विवरण कर देइचंती भगवान, को श्लोक रे यार अर्थ कहचंती, को श्लोक रे ए दूरत्यय माया को अतिक्रम करबा कथा कहचंती, सेही श्लोक आवृत्ति पूर्वक तार अर्थ को परिप्रकाश करंतु। जय श्री राधे। जहाँ श्रीनिवास प्रसाद स्वागत स्वागत। केउ माने दूरत्यय माया को अतिक्रम करि पारंती, एटा केउ केते नंबर श्लोक रे एटा कहैचंती, श्लोक रे उक्त अछंती। से श्लोकटी उच्चारण पूर्वक तार अर्थ तार तात्पर्य परिवेषण करो। आज्ञा। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भजे प्रपद्यन्ते
मायामेतां तरन्ति ते। अर्थात कारण मोर ही माया अलौकिक अर्थात अत्यंत अद्भुत ओ त्रिगुणमयी होइथिबारु बड़ा दुस्तर, परंतु जो माने केवल मते ही निरंतर भजन करती से माने एही माया को उल्लंघन करि जांती, अर्थात संसाररु तरी जांती। एठारे मायार तीनिटी विशेषण संदृष्ट होइଥାଏ, दैवी, गुणमयी और दुरत्यया अर्थात दुरतिक्रम्य। दुखेन क्लेशेन अतिक्रांतुं योग्या एषा माया, देवस्य इयम् इति दैवी, यह शंकर पादंक मत। परंतु सारार्थ वर्षिणीकार देव पदरे जीव को नैछन्ति। विषयानंदेन दिव्यन्ति इति देवाः नाम जीवाः। देवानां नाम जीवानां मोहयित्री गुणमयी अर्थात पाशमयी माया आवरणकारिणी शक्ति अटे। यह भगवानंक चिदानंद प्रकाश को आवृत्त करिथाए। जी सर्वात्म भावरे भगवानंक शरणापन्न होइथाए से ही दुस्तर माया को उत्तीर्ण होइथाए। भृत्यानुग्रह कातर भगवान से ही शरणागत जीव को उद्धार करिथांति। पंडित मानी व्यक्तिगण भगवानंक आश्रय को ग्रहण करि नथांति, परंतु प्रकृत पंडित माने स्वतः भगवानंक शरणागति को स्वीकार करिथांति। धन्यवाद, अशेष अशेष धन्यवाद। साधु 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 भल भाव सुंदर भाव उत्तरटी प्रदान करथिया हेतु गीता चिंतन चंचरिका तरफ तुमको आम धन्यवाद ज्ञापन करुचु। वर्तमान द्वितीय प्रश्नटी है केउ माने भगवानंकर शरणापन्न हुअंती नाही, केउ माने भगवानंकर शरणापन्न हुअंती नाही। एई प्रश्नर उत्तर भगवान को श्लोक रे कहिसेंती, से श्लोकर नंबर टी कही से श्लोक उच्चारण पूर्वक तार तात्पर्य अर्थ को विश्लेषण करने पई मु अनुरोध करुछि। केउ माने भगवानंकर शरणापन्न हुअंती नाही। जय जय श्री राधे। गौर प्रसाद स्वागत स्वागत गौर प्रसाद उत्तर। भगवान यही आज्ञा रंजित प्रसाद। रंजित रो रंजित आयुष्मान रंजित 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 कह ठीक अछि। भगवान यही प्रसंग को 15 श्लोक रे व्यक्त करिसेंती। न मां दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो मानकर ज्ञान माया द्वारा अपहृत हो जाइछि, सेपरि आसुर स्वभाव धरिथिबा लोक माने तथा मनुष्य मानक मध्य रे निज दूषित कर्म मूढ़ माने मते भजन करंती नहीं। एही श्लोक रे दुष्कृति मानकर 4 प्रकार भेद वर्णित होछि। मूढ़ः, नराधमः, मायया अपहृत ज्ञानः, आसुरं भावमाश्रिता। मूढ़ दुष्कृति मानकर प्रसंग रे श्रीमद् भागवत कहउचंती जेउपरी निष्ठा जेउपरी दिष्टाभोजी सुकर विश्लेषण कर। जेउपरी विष्टाभोजी शुकर क्षीर खंड को परित्याग करी विष्टा भोजन करिथाए, सेहीपरि जो पुरुष देवता मानक द्वारा प्रपीड़ित होई हरिकथा रूपी अमृत को परित्याग करी अन्य असत कथा को श्रवण करिथाए, से अत्यंत हतभाग्य संपन्न व्यक्ति अटे। अतः पशुठारु अतिरिक्त आउ किए बा होई परिबो जे कि मुकुंद को सेवा परायण हेबन। पुनः किछि समय पई भक्ति युक्त होई मनुष्यता को प्राप्त कला परे मध्य अंतिम काल रे स्वेच्छा पूर्वक भक्ति को परित्याग करिथाए। कारण फल प्राप्ति रे साधना भूत
भक्तिकर कौन प्रयोजन नहीं से नराधम अटे आज्ञा रंजीत, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रभूत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। एठी भगवान दुष्कृति को चारि भागरे कहिचंती ये मूढ़ एवं नराधम, माया द्वारा अपहृत ज्ञानी एवं आसुर भाव आश्रित। असुर भाव को जो मैंने आश्रय करते यही चारि जन दुष्कृति ही भगवान को भजन करती ना, भगवान को शरणापन्न होती ना। वर्तमान जय सिया राम। तृतीय नंबर पर, हाँ सियाराम 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 जवनिंद्र जी बोलिए। इसी श्लोक को थोड़ा सा हम देखें। हाँ ठीक है ठीक है, खूब यदि चर्चा कर सकते हैं, आपका विचार रख सकते हैं तो हम धन्य होंगे। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, इसका विचार रख सकते हैं आप, बोलिए। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जो दुष्कृति हैं और साथ ही मूढ़ होते हैं, वे ही भगवान के शरण में नहीं जाते। दुष्कृति होते कौन है? तो जिनका सांसारिक नाशवान पदार्थों में, ये जो परिवर्तनशील पदार्थ हैं, इनमें जिनकी ममता है, और जो अप्राप्त पदार्थ हैं उनमें उनको प्राप्त करने की जो कामना रखते हैं, वही मूढ़ होते हैं। यदि कामना उनकी पूरी हो गई तो उनको लोभ बढ़ जाता है। जैसे जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मानस में गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। और यदि कामना की पूर्ति हो गई तो लोभ हो गया। संयोग से यदि कामना की पूर्ति नहीं हुई तो कामना में बाधा हुई तो क्रोध होता है। तो दोनों ही दशा में नुकसान है जीवात्मा का, लोभ हो तो भी क्रोध हो भी तो भी, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये मानस में इसका स्पष्टीकरण है कि क्या है, ये नरक के बहुत बढ़िया रास्ते हैं। नेशनल हाईवे जो बनता है वो नरक के लिए लोभ क्रोध काम मोहम्मद से बनता रहता है हाईवे, कहीं रुकावट नहीं है, आप बड़ी स्पीड से जा सकते हैं, जाते ही हैं। तो कामना में फंसने से व्यक्ति क्या क्या करता है? व्यभिचार करता है। और शास्त्र में जिन जिन विषयों का निषेध है उन विषयों का सेवन करता है। लोभ में फंसने पर क्या क्या होता है? तो झूठ बोलना पड़ता है, कपट करना पड़ता है, विश्वासघात तक करना होता है, और बेईमानी। ये सारे पाप आदमी इसी लोभ में फंस करके करता है। क्रोध के यदि वशीभूत हो गया तो क्या करेगा? सबसे पहले द्वेष करेगा। और द्वेष एक ऐसी वस्तु है जिससे कभी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और द्वेष के नाते वैर बढ़ता है, दुर्भाव पूर्वक हिंसा भी करने का मन करता है। ये सब जिनके मन में घूमता है ये भाव, वो सब दुष्कृति के अंतर्गत आते हैं। भगवान हैं और उनके होने में कोई संदेह नहीं है। सारे वेद से लेके ब्रह्मा से लेके अभी तक के ऋषिगण जिनके बारे में गाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, आनंदित होते हैं, वो भगवान हैं। लेकिन उन भगवान को छोड़ करके उनके सिवा दूसरी सत्ता जब मानता है आदमी तो उस सत्ता को महत्व देता है। तो जब भगवान के सिवा दूसरी सत्ता को महत्व देगा तो उसके अंदर कामना पैदा होगी। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाता है, क्योंकि माया में ही संसार है। तो हम जीते रहें और भोगते रहें, ये बात उनमें अच्छी तरह से बैठ जाती है, उनके चित्त में, उनके हृदय में।
तो वो इसीलिए भगवान के शरण नहीं जाते कि वो विषय भोगों में फंस जाते हैं। तो नाशवान और विनाशी वस्तु जितनी है वो सब उसी के आग्रह में लगे रहते हैं, उसी का वो इकट्ठा करते हैं, उसी को भोगने में अपना मन लगाते हैं। ये सारी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण की अधिकता जब होगी तो सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सब का ध्यान नहीं होता है। इस सब का ध्यान जब नहीं है, ऐसे लोग जो भगवत विमुख हैं, विषयों के अभिमुख हैं, वे सारे मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष भगवान की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकता। सभी मूढ़, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के मूढ़ भगवान की तरफ नहीं जा सकते हैं, उनका निश्चय ही नहीं होता है। तो जब ये ऐसा ही निश्चय नहीं करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो परमात्मा के शरण कैसे जा सकते हैं? तो ये इनको मूढ़ तो कहते ही हैं, लेकिन इनको नराधम तक कहा है। नराधम क्यों कहा है? कि दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी गए गुजरे हैं, इतने नीच हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रह पाते हैं, लेकिन ये मनुष्य होने पर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते, तो ये पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु तो अपनी भोग जोनी है, भोग करके मनुष्य जोनी की तरफ जा सकता है, लेकिन ये मनुष्य होने के बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य शरीर मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, देवताओं को दुर्लभ है, ग्रंथ ऐसा गाते हैं, और ये मिला हुआ है फिर भी पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, और नरक और नीच जोनियों की तरफ यात्रा करने के लिए अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने में जिनका मन लगा हुआ है, ये ऐसे प्राणी जितने हों विश्व ब्रह्मांड में, वो सब नरक जाने के लिए योग्य होते हैं। समस्त प्राणियों के लिए भगवान ने कहा है कि जो द्वेष रखने वाले हैं, जो मूढ़ हैं, क्रूर हैं, संसार में अधम हैं, तो छिपाम मेजस्र मसुभा ना श्री स्वेव जो निशु, ऐसे जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, अधम हैं, उनको हम आसुरी जोनियों में बार बार डालते हैं, बार बार गिराते हैं, नीचे गिराते हैं। ततो यान्ति अधमाम गतिम, और वहां से भी वो ऊपर तो जाते नहीं, और भी नीचे जाते हैं। जो माया से अपहृत है जिसका ज्ञान, ऐसे सभी मनुष्य आसुर भाव के आश्रय में रहने पर भगवान की जो माया है उससे उनका विवेक ढक जाता है, इसीलिए वो आसुर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, इन्हीं का प्राणों का पोषण करने में ये मूढ़ लगे रहते हैं, इसीलिए भगवान से विमुखता बनी रहती है। और यही कारण है कि भगवान की शरणागति में ये सब जो प्रक्रिया है वो बाधा है। जिनका ज्ञान होना चाहिए लेकिन माया ने उनका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसे मनुष्यों की जो वृत्ति है वो पदार्थों के अलावा उसके पदार्थों में जो अंत है, माने कोई भी चीज उत्पन्न हुआ है वो खत्म होगा, नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, तो ये अंत की तरफ उनकी वृत्ति नहीं जाती है, क्योंकि माया से उनका ज्ञान अपहृत हुआ है। उत्पत्ति है पदार्थों की, पदार्थ विनष्ट होते हैं, तो प्रत्यक्ष यह देखते हुए भी रुपया, पैसा, संपत्ति, ये जो है इसके संग्रह में मान करते हैं, अपनी योग्यता का अभिमान करते हैं, प्रतिष्ठा और कीर्ति में ही आसक्त हो जाता है आदमी। और इन्हीं में आसक्ति के नाते उनकी प्राप्ति में सहज जितनी भी बहादुरी, जितनी भी अपना उद्योग करना होता है, सब उसी में सफल होने के लिए आदमी पूरा का पूरा जोर लगाता है और उसी को प्राप्त करने का सारा उद्यम करता है। क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि वो श्लोक नहीं उठ रहा है, अभी आया था लेकिन फिर स्लिप कर गया।
तो इस कारण से ऐसे लोग ये समझ भी नहीं सकते कि जो अभी है ही नहीं उसकी प्राप्ति होने पर अंत में वह बचेगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, तो उसके साथ अपना संबंध कैसे होता है? नित्य का अनित्य में कोई संबंध बनता ही नहीं। असु कहते हैं प्राणों को, और प्राणों को प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि ये आता जाता रहता है, क्रियाशील है और नाशवान भी है। इन्हीं प्राणों का पोषण जो करते रहते हैं और जीवन निर्वाह में जो सांसारिक वस्तुएं काम में आती हैं उनको महत्व देना होता है। उन्हीं वस्तुओं में अपना ध्यान रहता है तो रुपये पैसों का महत्व होता है, और रुपया पैसा स्वयं अपने काम में नहीं आता है पूरा का पूरा, क्योंकि आत्म तत्व को रुपए पैसे से क्या लाभ होने वाला है। और वस्तुओं के द्वारा हम प्रयोग करते हैं जीवन में जो भी वस्तु, उसकी कामना बढ़ जाती है। कामना बढ़ जाती है तो नाशवान पदार्थ है, उन्हीं नाशवान का हम संरक्षण करते हैं। तो रुपयों पैसों का आदर देते हैं और उनकी संख्या जितनी बढ़े उतनी खुशी मिलती है। तो रुपया पैसा चाहे जो भी है, मान सम्मान, ये अभिमान बढ़ाने में ही काम आता है। और अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मुख्य आधार है। आधार होने के नाते सभी दुखों एवं पापों का मूल कारण है। इसको मानस ऐसे कहता है, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। माने कोई ऐसा शोक नहीं है जिसको अभिमान प्रदान न करता हो, और उसी अभिमान की पुष्टि में हम लगे रहते हैं। ऐसे अभिमान को लेकर के जो अपने को ज्यादा महत्व देता है, ऐसे प्राणों का संरक्षण करने वाले सभी आसुर हैं। ये आसुर स्वभाव वाले माने जाते हैं। भगवान के शरण में दुष्कृति मनुष्य नहीं जाता है तो वो सुदुराचारी है। सुदुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से भी यदि भजन करे तो वो भी बहुत जल्दी धर्मात्मा बन सकता है, बन ही जाता है, और निरंतर जो शांति कायम रहती है उसको प्राप्त कर सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अनन्यता से भगवान का भजन करने से दुराचारी प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक तो होती नहीं, लेकिन यदि भगवान की शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से कोई मनाही नहीं है कि तुम नहीं आ सकते, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कोई दुराचारी से दुराचारी भी क्यों न हो, अतिशय दुराचारी हो तो भी भगवान का भजन करने की सुविधा उसको है। अब बाकायदा वो करे तब तो। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचन मात्र भी, तनिक भी कोई बाधा नहीं है। चींटी के जितना मात्रा वाला भी बाधा भगवान उसके मार्ग में नहीं लगाते हैं, क्योंकि भगवान का कहना है कि अपिचेत सुदुराचारो। दुराचार में बहुत बढ़िया स्थिति जिसकी स्थिति है वो सुदुराचार है। तो भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। यद्यप सम नहीं राग न रोसु, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। ना तो पाप लेते हैं न तदपि करहि। किसी का पाप पुण्य नहीं लेना है, फिर भी तदपि करहि सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्त है तो उसके अनुसार से भगवान उसके साथ विहार करते हैं, अभगत है तो उसके अनुसार करते हैं। भक्त होगा तो उसके कल्याण के लिए भगवान मार्ग प्रशस्त करते हैं, अभक्त होगा तो उसको नीच जोनी में डालने के लिए प्रशस्त कर देते हैं। भैया जहां जाना चाहते हो जाओ। कर्म में स्वतंत्रता इसीलिए दी हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान ने जो कहा है। भगवान का अपने तरफ से किसी में राग द्वेष नहीं है, सबके लिए वो समान ही है। दुराचारी मनुष्य भी भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं। भगवान हर प्राणी पर प्यार ही करते हैं। सब पर मोरी बराबरी दाया। अब सब पर में वो भी आता है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं भगवान की दया सब पर समान रूप से विद्यमान है। अब उस दया का हम लाभ लें न लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने जीवन में दिक्कत होती है कि हम दुराचारी यदि हैं तो भगवान वैसे अधिक दया करते हैं, क्योंकि वो जीव अपना अहित कर रहा है। भगवान का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, चाहे जितना भी दुष्कृति वो दुष्कर्म कर ले, तो भगवान ज्यादा दया करते हैं कि किसी भी तरह से इसका कल्याण हो जाए
उसको बार बार लाभ देते रहते हैं, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। यदि किसी कारण से किसी जीव पर कोई बड़ा भारी आफत संकट आ जाए और उसको कोई सहारा न रहे, तो भगवान को पुकार उठता है। तो किसी संत को उसने दुख दिया, संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाता है। किसी स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे स्थान है, विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं, तो उस स्थान के प्रभाव से भी जीव का भाव बदल जाता है। जैसे हम लोग सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, तो सत्संगति किम किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मनुष्य का, जीव का क्या क्या नहीं कर सकती है। तो ये सब माध्यम है, इन माध्यमों में कैसे भी लग जाए आदमी तो अचानक भी चेत जाता है, अचानक अपने में परिवर्तन हो सकता है। इसका मुख्य कारण यही है, और इससे भगवान की शरणागति का मार्ग प्रशस्त होता है। पापी पुरुष भी भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लग सकता है, क्योंकि पाप करते करते उसका मन थोड़ा सा अलग होता है पाप से, तो उसका भाव दृढ़ हो जाता है भगवान में, क्योंकि उसके भीतर कोई अच्छाई तो है नहीं, तो उसमें अपने अच्छेपन का कोई अभिमान नहीं होता है पापी में। उसको बार बार अपने पाप का ही, जैसे एक मंत्र है, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, तो वो कहता क्या है कि त्राहिमाम हे जगन्नाथ, हे विश्व के स्वामी, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो। तो क्या करना है बच्चा, त्राहिमाम हे जगन्नाथ, तो उसका पुकार है कि सर्व पाप हरो भव, हमने इतने पाप कर दिए, हे परमात्मा, हे दयालु, हे अनंत, हे जगदाधार, ये सारे पाप हमारे हरण कर लो आप। तो तात्पर्य यही है कि भगवान की व्यापकता और कृपा दोनों ब्रह्मांड में समान है, चाहे जीव कोई भी हो। ब्रह्मा भगतहीन बिरंच किन होई, ब्रह्मा में यदि भक्ति नहीं है तो सब जीव सम प्रिय मोहि सोई, सर्वाधिक निकट हैं। सृष्टि जब होती है तो नारायण के सर्वाधिक निकट ब्रह्मा है, उनको सृष्टि का भार दिया हुआ है। लेकिन यदि वो भक्ति से रहित हो जाए, भगवान की आराधना भजन में कमी हो जाए, तो सामान्य जीव हो जाते हैं, वो ब्रह्मा नहीं रह जाते। सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। यदि भक्ति है तो भगत इवंत अति नीच प्राणी, नीच से नीच कोई प्राणी हो, भक्ति वाला है तो मोहि प्राण प्रिय, ऐसा भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है। असीमम वाणी, जैसे भगवान का उद्घोष वेद वाणी है, तो भगवान अपनी वाणी को कहते हैं कि ये हमारा वाक्य है, ये हमारी वाणी है, इस पर नहीं विश्वास करने का कोई कारण नहीं है ब्रह्मांड में किसी के लिए भी। तो मूल में तो प्राणी भगवान का ही अंश है, तो शुद्ध ही है। केवल दुराचार के कारण भगवान में जो रुचि नहीं होती है, तो जिस किसी कारण से रुचि हो जाए, इसके लिए भगवान ने सत्संग दिया है, संत दिए हैं, भगवान अवतार लेते हैं समय समय पर। और मानस कहता है कि रहति न प्रभु चित चूक किए की, किसी जीव से कोई चूक हो जाए तो भगवान उसका ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान किस बात का देते हैं, करत सूरत सय बार ही है कि सैकड़ों बार हृदय का क्या भाव है, ये भगवान इस पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि शंकराचार्य ने कहा है अपने विनय में, कुपुत्रु जायेत, कुपुत्र तो उत्पन्न हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वह चिदापि कुमाता न भवती, कहीं पर भी कुमाता नहीं होती है, क्योंकि माता माता होती है। और भगवान तो अनंत माताओं को जोड़ा जाए तो उससे भी अधिक प्यार देते हैं जीवों को भगवान। माँ तो एक जन्म को देती है, शरीर को देती है, लेकिन प्रभु तो परमानेंट माँ है, वो बराबर रहने वाले हैं। अपनी माँ तो 100 साल 50 साल जो भी उम्र हो उतने में आती है चली जाती है, लेकिन परमात्मा तो आने जाने वाले हैं नहीं, वो तो परमात्मा बराबर विद्यमान है। और प्रभु का हृदय प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित ही रहता है। प्रभु करुणामय है और बराबर दयावान ही रहते हैं। तो प्राणी मात्र कोई भी किसी भी निमित्त से यदि शरण में जाता है तो भगवान उस पर दया बनाए रखते हैं।
क्योंकि एक बार विभीषण जी जब शरणागति में आए तो भगवान ने उनको एक आश्वासन दिया कि जौ नर होई चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। किसी भी भय से हमको हमारी शरणागति ले और हमारे शरण को देखे और आ जाए। साथ में उसके भगवान ने कुछ ऐसे व्यवहार बताए हैं तो थोड़ा उसका पालन हो जाए। ताजी माद मोह कपट छल नाना, अनेक प्रकार के छल करता है मनुष्य, ये सब छोड़ दे तो भगवान क्या करते हैं, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। जी आप कुछ कहना चाहते होंगे तो आदेश दीजिएगा। तो ठीक है ठीक है ठीक है, आप अच्छा विचार रखते हैं, ठीक है चलिए। ताजी मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य ते ही साधु समाना। इस सुंदरकांड में ये पंक्तियां आई हैं। तो भगवान उसको माने बिना विलंब के तत्क्षण साधु बना देते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि साधु रेव समंतव्य, वह साधु ही मानने योग्य। क्यों कि सम्यक व्यवसितो ही सह, वह उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, उसको साधु मानो। तो समस्त चराचर प्राणियों में जो द्वेष करता है, कहीं भी आश्रय न मिले तो भयभीत होकर भी भगवान का शरण ले लेता है, तो उसमें मद मोह कपट और नाना प्रकार के छल ये सब भगवान नहीं देखते, केवल उसके भाव को देखते हैं और उसको भगवान साधु बना देते हैं। करऊं सद्यते ही साधु समाना। धर्म का आश्रय हो तो धर्मात्मा पुरुष के भीतर भी अनन्य भाव होने में कठिनता होती है, क्योंकि धर्म का आश्रय लेने से उसका भी एक अभिमान बन जाता है कि हमारे में धर्म है। लेकिन दुरात्मा जब किसी कारण से भगवान के शरण होता है तो उसमें शुभ कर्म का कोई अभिमान ही नहीं होता, क्योंकि शुभ कर्म बना ही नहीं है। तो भगवत परायणता का बल उसमें अधिक होता है, क्योंकि अपने शुभ कर्मों का कोई उसको बल नहीं है कि किस बात का अभिमान करे। तो पापो हम पाप कर्मा हम की श्रेणी को याद करता है कि हम तो पाप मैं ही हैं और बराबर पाप कर्म ही किए हैं। तो हे परमात्मा त्राहि माम, हमारी रक्षा करो हे प्रभु, और सर्व पाप हरो भव, जितने भी हमने पाप किए हैं इसका हरण कर लीजिए हे परमात्मा। तो यह बल जो है पाप का बल, वो भगवान की तरफ जाने में ज्यादा सहायता करता है। केवल चिंतन की दिशा बदलने की बात है, और ये बल खुद का है, इसमें किसी तरह का आश्रय नहीं रहने से, किसी प्रकार का अपना बल नहीं होने। जैसे द्रौपदी पुकार रही थी तो उसने वो दांत से साड़ी के कोने को दबा लिया। अब भगवान को समस्या हो गई कि कैसे हम चलें। अब सब जब छूट गया तब भगवान तो तुरंत प्रकट हो गए, अनंत वस्त्रावतार ले लिया उन्होंने और उसकी रक्षा हो गई। भगवान पुकार करने से बहुत शीघ्र पिघलते हैं, और ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा पापात्मा विद्वान मूर्ख सुजात पुजाति ये सब कोई कारण इसमें नहीं है। संसार की तरफ से केवल निराशा हो जाए, यही एक खास कारण भगवान को पसंद है। ये निराशा किसी भी मनुष्य को हो सकती है, प्राणी मात्र को हो सकती है। जब निराशा हो जाएगी भगवान के शरणागति वो हो सकता है। भगवान कहते हैं कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते। अब कैसे शरण होंगे, क्योंकि उनका स्वभाव तो परमात्मा के विपरीत होता है। अब कोई उनमें दुष्कृतियों में से भी परमात्मा के कोई शरण हो जाए तो परमात्मा उसे प्यार देने के लिए हमेशा तैयार है, 24 आवर्स। माने कोई उसमें गैप नहीं है एक सेकंड का भी कि परमात्मा को हम पुकारें या परमात्मा हमें कृपा न करें, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा की कृपालुता बड़ी विलक्षण है। भगवान अपने कृपा के परवश होकर ही जीव का कल्याण करते थे हैं, और यहाँ हो चाहे वहां हो कोई विरोध नहीं इस प्रसंग में। हर जगह भगवान की कृपालुता बराबर प्रकट है। सुकृति हो मनुष्य या दुष्कृति हो, ये तो उसकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, लेकिन भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर सुकृति और दुष्कृति होता है। दुष्कृति न कहने से बहुवचन प्रकट हो रहा है, लेकिन सुदूराचार एक वचन में दिया हुआ है। बहुवचन
यानी कि सामान्य शास्त्र की बात है। एक वचन देना विशेष शास्त्र की बात है। जहाँ सामान्य और विशेष शास्त्र की तुलना होती है, वहाँ सामान्य शास्त्र को कम और विशेष शास्त्र को अधिक माना जाता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि सामान्य शास्त्रो न्यूनम विशेषो बलवान भवे, इसलिए एक वचन ज्यादा बलवान है। तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया भटज्ञानासुरम भाव माश्रिता चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। अब यहाँ एक वचन इसीलिए दिया हुआ है तो एक वचन ज्यादा बलवान है। चाहे किसी भी प्रकार से भजे, चार प्रकार में आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, पैसा भी मांगना हो भगवान से तो भगवान को प्रिय है। आर्त हो, कुछ संकट हटाना हो तो भी भगवान को प्रिय है। जिज्ञासु हो, कोई जिज्ञासा का समाधान ही चाहिए परमात्मा से तो भी प्रिय है। और ज्ञानी तो परमात्मा कहते हैं हमारा आत्मा ही है। इस प्रकार से भगवान की जो करुणा है वो प्रकट है। मानस में भगवान ने कहा है कि सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। नासहि का मतलब भगवान को नाश नहीं करना पड़ता है, उस सम्मुख होने से स्वतः ही नष्ट हो जाता है, चाहे करोड़ों जन्म का ही अघ क्यों न हो। तो हमको लगता है कि अब नजदीक आ रहा है समय, कुछ समय रह जाए ताकि आप संचालन वाले में आगे पीछे एडजस्ट कर सके। तो हम प्रणाम कर लेते हैं। जय सिया राम, सादर प्रणाम। अवनिंद्र जी, आपसे तो आपको हम प्रणामांजलि पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आप तो अच्छे विचार रखे हैं। और नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, फिर भी आगे कभी समय हो तो आपका कोई अच्छे विचार को हम भी फिर आस्वादन करेंगे। वर्तमान मु तो समय हो गलानी, मु माननीय श्रीधर महाराज को अनुरोध करी से परे कहबे। वर्तमान मु आमर जो प्रतियोगी श्रीधर महाराज कहीपरेनि, माननीय सदस्य गण एठार उपस्थित रही। अन्य मान सब तांकर विचार आमे परवर्ती सत्र रे सेमानकु स्वागत करिबा। वर्तमान एही सत्रर शेष पर्याय रे मु कहिबी, जदि आयुष्मान रूपेश प्रसाद जदि 21 रु 25 पर्यंत 25 श्लोक पर्यंत आवृत्ति करिवे ताहले भल हेब। 21 रु 25 श्लोक पर्यंत बा 28 श्लोक पर्यंत आवृत्ति करिवे ताहले हबो। 28 श्लोक पर्यंत आचार्य पादंकर व्याख्यान हेतिला एवं तापर 29-30 श्लोक व्याख्यान अछंती, अवशिष्ट अछंती, जहा काली आचार्य पाद से 29-30 श्लोकर व्याख्यान करिवा, मान श्रवण करिवा। वर्तमान 28 श्लोक पर्यंत एई मु आवृत्ति करिया पे आयुष्मान रूपेश प्रसाद को अनुरोध करुछि। जय श्री राधे। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति
लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अशेष धन्यवाद आयुष्मान रूपेश प्रसाद। वर्तमान समयर परिधि आम मान को बाध्य कर आज सत्रु समापन करने तेणु मु समस्त चरण कमल आम गुणीजन भक्तजन वैष्णवजन गुरुजन विदग्धजन चरण कमल अशेष प्रणाम ज्ञापन करी गीता माता को मोर अशेष प्रणाम ज्ञापन करी आज सत्र को ये समापन करने आपण मान ठारो अनुमति चाहूची। परवर्ती सत्र आचार्य पार्जकर अपूर्व व्याख्यान आम श्रवण करवा। आहु मध्य एई सत्र रे विशेष सत्र मध्य अनुष्ठित हेबो। सब आचार्य माने आमर परम विद्वान परम भक्त भावुक आचार्य माने मध्य समुपस्थित अछंती मु रहिबे एवं परवर्ती काल रे सेमानकर आलोचना सेमानकर चर्चा को मध्य आमे आस्वादन करि परिबा। आज आमर बड़ सौभाग्य थिला आम गहन रे परम वंदनीय प्रोफेसर प्रभात रंजन महापात्र उपस्थित थिले। तेणु मु गुरुजी को चरण मध्य आम गीता चिंतन चंचलिका तरफ अशेष धन्यवाद प्रणाम पूर्वक अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुछि एवं सबु शुद्धि मान को आउ थे मोर प्रणाम विज्ञापन पूर्वक आज चर्चा सत्र को आम समापन करुचे। जय जय श्री राधे। श्री भगवत गीता महारानी की जय। जय जय श्री राधे।